startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. 12 साल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस तरह की सीखी जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल में होनी चाहिए या होती हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ मॉडल डिड शी कॉपी? जो कुछ मैंने L2L में रह के सीखा है एज अ टीचर, दैट हैज एडेड एवरीथिंग व्हाट आई एम टुडे. L2L का पर्पस था टू डेवलप इंडिविजुअल्स हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स. हम चाहते थे ऐसे लोग जो सेल्फ कंटेंटेड हों, वो खुश हों अपने काम से, अपने आप से, अपनी ज़ात से. शादी के बाद डूइंग अ पार्टनरशिप ओवर अ पार्टनरशिप, हाउ डिड दैट हैपन? पढ़ा भी है, सोचो हस्बैंड से पढ़ना आसान काम नहीं है. He has been the focal point in my life where he has been telling me कि तुम में ये strength है, तुम ये कर सकती हो, तुम ये करोगी. यूं कह लीजिए कि what I am today is because of my husband's motivation. आपकी क्लास सबसे अच्छी थी क्योंकि इट वुड बी द मोस्ट इंट्यूटिव, इंटरैक्टिव एंड एनर्जेटिक क्लास. ये तब हो सकता है जब उस्ताद का अपना पैशन हो लर्निंग के अंदर. अगर खाली स्टूडेंट सीख रहे हैं और टीचर जो है वो बस डिलीवर कर रहा है और बताए जा रहा है, तो वो मोनोलॉग होता है. बेसिक जो चीज़ समझने की है वो ये कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसे ग्रैब किया जाए, उसके लिए खुद इंटरेस्ट होना पड़ता है ना. Assalamu alaikum, मेरा नाम है साद अल्लाहवाला and we're back with another podcast. Today we have a very special guest with us जो मेरी वालदा की तरह हैं. एक बहुत बड़ी मेरी मेंटोर हैं, मेरी एक इंस्पिरेशन हैं और मुझसे नहीं बगैर जिसके साथ भी इनको देखा है उससे भरपूर प्यार करती हैं. मेरे साथ हैं सारा हैदर, मिस सारा, who is the principal of my school, the co-founder at L2L Academy, where I used to go. So she doesn't like the story, but before I left schooling, I was with her. So she's not in favor of me leaving, but I enjoyed the whole journey. And then anyone who has been to that school, my siblings still go there. It's a phenomenal place to be at, and she's doing an amazing work. And the reason of calling her today was her journey of 12 years. 12 साल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस तरह की सीखी जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल में होनी चाहिए या होती हैं. What kind of a model did she copy? All of that I want to learn from her. But first of all, thank you so much for coming, Sara. Pleasure is all mine. In fact, इस वक्त जो खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे बैठकर talking to you is beyond any words that can actually capture how I'm feeling. क्योंकि आप एक छोटे से पौधे को नर्चर करना शुरू करें and that पौधा grows up into a big tree, fruitful tree, तो वो जो एक feeling होती है एक मदर की या एक टीचर की, it's beyond expression. Secondly, just adding to your introduction, जब आपने ये कहा कि I don't like that story of you leaving the school. Well, देखो L2L का पर्पस था to develop individuals who can think for themselves, who can self-actualize, visualize what they want out of life. And we are successful in creating such human beings. So you know what you want to do and where you want to be. And that's it. That's what we wanted to create. हमारा जो start करते ही जो idea था वो ये था कि we saw a lot of talented ruins around us who have achieved academically top चीजें, you know, but they're not happy. And then there are people जिनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, they are not happy. तो हम चाहते थे ऐसे लोग जो सेल्फ कंटेंटेड हों, वो खुश हों अपने काम से, अपने आप से, अपनी ज़ात से. तो देयर यू आर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम माइटी प्राउड ऑफ यू. तुम्हें डिग्री की ज़रूरत नहीं है. उस दिन भी बात हो रही थी
तुम्हारे अब्बा से हाँ हाँ तो मेरे दिल में आया कि मैं पहला स्टेटमेंट ये कहूँ कि सार डजंट नीड O levels A levels, he's doing pretty fine, and I have so many other names to quote. One is sitting right here with us. वैसे They don't need that certificate to certify them कि हाँ ये now they are ऐसे individuals बन चुके हैं जो कि माशरे में कुछ अच्छा ऐड करें. You guys are already doing a lot to add something positive to the society, and that's what education is all about, to differentiate between right and wrong and to find your own meaning and your own calling, and that's what you guys are doing. So I'm mighty proud of you guys. मेरा बेटा मुझसे अक्सर कहता है आप जब अपने बच्चों के बारे में लिखती हैं ना कि आई एम माइटी प्राउड ऑफ यू, ऑलवेज राइटिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, तो मैंने कहा दैट्स फ्रॉम माई हार्ट. आई एम माइटी प्राउड ऑफ देम. Look at you, look at Saad, look at Talha, look at Waji, look at Fazal, Armaghan, Afnan. So there are so many names I can take. And वो बच्चियाँ नबी सिस्टर्स माशाल्लाह से, तो ये लोग अपने आप में पूरी दुनिया लेके आगे बढ़ रहे हैं और सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. तो आई एम श्योर कि तुम लोगों को किसी डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है. हाँ कर लेना जस्ट फॉर to satisfy your parents and all. तो ये वाली बात है. Again, it's a very big honor, and all the experiences that you've given us, and you've मतलब तो I would say Tala and me, we came from a family which always was थोड़ी सी पागल के भाई जो करना है कर लो, लेकिन coming to an institution which also empowered that was very important in our nurturing, and I'm so happy that my parents empowered me and gave me the decision to come to L2L. Alhamdulillah for that. And initially I got an escape from my typical school because it wasn't good. Lekin after that it just was a blessing in disguise, and I'm so thankful of you guys for giving us all of this. It is equally an honor and a pleasure and a lot of happiness कि हमारे paths जो थे वो cross हुए. I got to know so many amazing talents in young children. Before we ask about L2L and all of that, I want to know a bit more about you. So where did you start? Where was your schooling? Where did you graduate? और फिर शादी इनसे कैसे हुई? और फिर ये शादी के बाद doing a partnership over a partnership, how did that happen? क्योंकि these partnerships sometimes are tricky, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिनसे जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ होती है उससे पार्टनरशिप नहीं करते क्योंकि इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. हाउ डिड यू वर्क दैट आउट? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैवंट हैड many female founders on my podcast because it's very hard to find them, and I'm so honored to have you today. So Achha, you've asked so many questions in one go. But starting off, I know this is going to be a long. I'll ask a long question कुछ बता लंबा भी जवाब भी लंबा है. हाँ नहीं, I'll try and answer every question. देखो सबसे पहले तो स्कूलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे अब्बा फौज में थे, तो हम तो हॉप एंड स्किप करते रहते थे. कभी हम पेशावर में होते थे, कभी पिंडी में होते थे, कभी इस्लामाबाद में रहे, और कभी हम पढ़ते थे बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ की फीसेस बहुत ज़्यादा होती थी, अब्बा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, पढ़ाते थे. और कभी बिल्कुल हम ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल था कि टीचर्स जो हैं वो सर्दियों के दिनों में स्वेटर बुन रही होती थी या कीनू धूप में खा रही होती थी और हम लोग क्लास में मस्ती कर रहे होते थे. तो कहाँ होते हैं ऐसे स्कूल? हाँ ऐसे बहुत स्कूल्स होते हैं, अब भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और भी दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ पे के बस वो रजिस्टर पे नाम होता है उस्ताद का, मंथली सैलरी आती रहती है, पर्क्स होते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से कि पेंशन मिलेगी और ग्रेड ये होता चला जाएगा. और पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या हो रहा है स्कूल में, इससे कोई गर्ज नहीं होती. और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, सब ख़राब नहीं होते. तो ऐसे स्कूल्स में भी हमने पढ़ा जहाँ पे ना मैथ्स ना इंग्लिश ना उर्दू, हर चीज़ में डब्बा गोल रहा. लेकिन समहाउ क्योंकि घर में हमेशा से माहौल किताब पढ़ने का था, अब्बा हमारे बहुत पर्टिकुलर थे चंद चीज़ों को लेके कि कुछ डिसिप्लिन्स थे घर के अंदर जिनको हमें फॉलो करना होता था. सवेरे उठना है, सहर खेज़ी हमारे यहाँ वाज वन ऑफ द थिंग दैट इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था. ना अम्मा ना बाबा दोनों सवेरे उठते थे. खाने के वक्त पे सब फैमिली साथ होगी, खाने साथ खाएंगे, अखबार पढ़ा जाता था घर में. अब्बा हमारे वाज वेरी पर्टिकुलर.
मेहमानों के साथ चाय नाश्ता फ़ौरन उनको देना है। तो ये फैमिली वैल्यूज़ बहुत रिच रही हैं हमारी घर में। और फिर मेरा ताल्लुक़, मेरी दादी लिखा करती थी इस्मत एक रिसाला था उसके अंदर, लिटरेरी वो 6 साल की उम्र से दादी मेरी पोइट्री कहती थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर मेरी दादी की कज़न सज्जाद हैदर यल्दरम साहब, तो घर में हमेशा इन लोगों के नाम सुने। और पढ़ने पढ़ाने का मामला रहता था, ननियाल की तरफ भी ददियाल की तरफ भी। तो वो एक इनग्रेन तो था अंदर। बाकी है कि स्कूलिंग चलती रही जैसे जैसे चलती रही। एकेडमिकली आई हैव नेवर बीन अ टॉप अचीवर, जिसे कहते हैं ना, वो एस वाले बच्चे नहीं थे। आई वॉज मोर इनटू स्पोर्ट्स। बेसबॉल की कैप्टन की टीम रहे, और हाँ हाँ, खूब फड्डे होते थे, खूब मस्ती होती थी। कभी इधर जा रहे हैं कैंपस में, कभी उधर इंटर कॉलेज हो रहा है, डिबेटिंग सोसाइटी में। 8th क्लास में है कि मैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। और इसी तरह स्कूल में एवरी इवेंट माय नेम वुड बी देयर। बाय डिफ़ॉल्ट टीचर्स को पता होता है कि हाँ, इन्होंने नात ख़्वानी में भी आना है, इन्होंने क़िरत भी करनी है, इन्होंने तराने भी पढ़ने हैं, इन्होंने टैबलो में भी हिस्सा लेना है। तो वो चीज़ों में हम ना आगे आगे होते थे। एकेडमिकली हम इतना नहीं करते थे। पढ़ना मैंने शुरू किया है शादी के बाद। अल्लाह। Because I got married to a person who was already into his master's and PhD program, and तो यूँ कह लीजिए कि what I am today is because of my husband's motivation. अगर वो मुझे वो सपोर्ट नहीं देते तो ही इज़ माई मेंटोर एंड ही इज़ ऑल्सो माई टीचर। तो पढ़ा भी है, सोचो हस्बैंड से पढ़ना आसान काम नहीं है मगर पढ़ा भी है मैंने। और पढ़ा भी कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। कि जब वो पढ़ा रहे होते तो मैं जमाइयाँ ले रही होती थी, नहीं लाइक तुम्हें पढ़ना भी है या नहीं लेकिन ये कि ही हैज़ बीन द फोकल पॉइंट इन माई लाइफ वेयर ही हैज़ बीन टेलिंग मी कि तुम में ये स्ट्रेंथ है, तुम ये कर सकती हो, तुम ये करोगी। तो पढ़ाई मैंने उसके बाद की है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल माई एजुकेशनल एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, जो कुछ मैंने L2L में रह के सीखा है एज अ टीचर, दैट हैज़ एडेड एवरीथिंग व्हाट आई एम टुडे। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाते हुए मैंने सीखा है। बिकॉज आपको जब किसी को पढ़ाना पड़ता है ना, तो आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसको डाइजेस्ट पहले करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आप मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल आज की मैं आपको दे दूँ। आज मैं जोग्राफ़ी और हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। आई हैव नेवर बीन कीन ऑन स्टडिंग जोग्राफ़ी एंड हिस्ट्री, लेकिन आज मैंने मैपिंग स्किल्स के साथ बच्चों को काम कराया। और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि हम L2L में हैंड्स ऑन काम करते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई ढूंढने में कि मैं क्या हैंड्स ऑन ऐसा कराऊँ कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि मैप रीडिंग करने की क्यों ज़रूरत है, कैसे करते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं, लेजेंड्स क्या होते हैं जो कि मैप में दिए होते हैं। एंड दैट वाज वेरी इजी। तो आई स्पेंट गुड 3 days एजुकेटिंग माई सेल्फ ऑन दैट। एंड आज की क्लास बहुत मज़ेदार हुई। दैट एट द एंड ऑफ द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स वर एनर्जाइज्ड। ये मुझे ज़रूर याद है कि जब भी हमारी क्लास होती थी, एंड आई थिंक तला वुड आल्सो एग्री टू दिस, कि आपकी क्लास सबसे अच्छी होती थी, क्योंकि इट वुड बी द मोस्ट इंट्यूटिव, इंटरैक्टिव and energetic class. Because whenever, even now, if I'm feeling low, a lot of times I think about you and your energy with everything, and your behavior towards things. You're always positive, you're always thinking the right way. You never like उसने ये बुरा कर दिया या उसने ये बुरा कर दिया। पता है ये क्यों होता है? ये तब हो सकता है जब उस्ताद का अपना पैशन हो लर्निंग के अंदर। ये लर्निंग अगर साइमल्टेनियस नहीं हो रही है ना क्लासरूम में, अगर खाली स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और टीचर जो है वो बस डिलीवर कर रहा है और बताए जा रहा है, तो वो मोनोलॉग होता है। तो जब तक कि दोनों साइड पे लर्निंग ना हो रही हो तो मज़ा नहीं आता, और जब मज़ा नहीं आता तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं पैदा होता। तो बेसिक जो चीज़ समझने की है वो ये कि बच्चों का इंटरेस्ट कैसे ग्रैब किया जाए। उसके लिए खुद इंटरेस्ट होना पड़ता है ना, चीज़ में लेना पड़ता है, इंटरेस्टेड दिखाना पड़ता है अपने आप को कि हाँ मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो यही समझ में आया टीचिंग में रह के कि जब तक कि टीचर का अपना पैशन नहीं है, वो चीज़ डिलीवर कर ही नहीं सकता शौक़ में। एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आज ही की। आज KG सेक्शन का पेट शो था। तो हमारे यहाँ जो सर हैं
he is by profession into selling, export करते हैं, import करते हैं वो birds and animals की. Yes, he's also very good. उनको भी कभी तुम podcast पे लेना अपनी. And he's such a simple human being. जब उनसे मैं पहली दफ़ा मिली तो मुझे लगा ये बिल्कुल एक और हमारे यहाँ एडिशन हो रहा है, एक मोतबर से मौलवी साहब आ रहे हैं तो ग्रेम से होंगे. जब उनसे बात की तो सच अ फन पर्सन, क्या नॉलेज है बंदे की. तो आज जो पेट्रो था उसमें सारे मुन्ने मुन्ने हमारे प्ले ग्रुप केजीज एंड वो सब बच्चे थे. एंड ऑल ऑफ देम ब्रॉट देयर, ऑल ऑफ देम अपने अपने घरों से अपने पेट्स लेकर आए थे. कोई गोल्ड फिश लाया था, कोई टर्टल लाया था, कोई साइमीज बिल्ली लाया था, कोई पर्शियन बिल्ली लाया था, मुर्गे आए थे, इतनी तरह के मुर्गे, ह्यूज मुर्गे. बच्चों के घर में मुर्गे होते हैं जी, और वो वाले मुर्गे इनके पंजों पे बाल, वो बड़े बड़े फेदर्स थे. फिर वो सर ने बताया कि ये एक मिस्री मुर्गी है, ये जो है हीरा मुर्गा कहलाता है, और तोतों की किस्में. तो वो जो नॉलेज वो दे रहे थे, आई वॉज मिसमराइज्ड बाय द नॉलेज ही वॉज गिविंग टू द स्टूडेंट्स. के देखो तोते जो हैं इनकी पहचान नर और मादा की कैसे होती है, कि जो नर होता है उसकी चोंच नीले रंग की होती है. तो एक बच्चा जो पिंजरे में लाया हुआ था, 2 पेयर था वो अपेरेंटली, तो उनका बेटा ये जो है ना दोनों नर हैं, तो आप दुकान वाले के पास जाइए और उससे कहिए आपको एक फीमेल दे. फिर बीमारी तोतों की और बिल्लियों की, बिल्ली को पर्शियन बिल्ली थी हेरी, इतनी लग रहा था बाल ही बाल है बिल्ली में. तो वो बिल्ली को उठा के उन्होंने जैसे ही उठाया, उनका देखो मैं बताता हूँ इसको क्या ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाल झड़ रहे हैं, विच मीन्स कि इसकी वैक्सीनेशन ड्यू है, आप इसकी वैक्सीनेशन करा लो. मुर्गी के बारे में बताया, वो जो मिस्री मुर्गी थी काले रंग की, कि ये जो है अब एज इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये अब अंडे तो नहीं देगी, तो इसकी कढ़ाई बना लो. ओए बच्चों को बोल दिया. हाँ, तो वो तो जाहिर है, मैंने कहा सर ऐसे तो ना कहें, मगर उनका हाँ तो दैट्स अ फैक्ट. तो या तो आप इसको पालते रहें तो फिर टिल डाई इट्स नेचुरल डेथ, अदरवाइज आप इसको फिर ये है कि इस्तेमाल कर लें. और फिर मैंने कहा आपको एज कैसे पता चली कि इसकी एज बुढ़ी हो गई है ये मुर्गी? तो उनका इसकी जो रिंग्स हैं उससे मुझे पता चल रहा है पैर के ऊपर पंजे के. तो ये वो जिस तरह से बता रहे थे, ही हैड अ कैप्टिवेटिंग ऑडियंस. मतलब छोटे बच्चों को कोई बात सिखाना सुनाना इस तरह की सीरियस बहुत मुश्किल था, बट बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉज पैशनेट अबाउट what he was saying and what he wanted to deliver, तो वो जज्बा आ रहा था, वो शौक नजर आ रहा था, and everybody was looking at him. A fantastic journey. And again हम आपकी वजह से, मैं जब भी कराची लिटरेचर फेस्टिवल गया हूँ तो आपके साथ गया हूँ, कोई शेर अगर आता है तो वो आपकी वजह से आता है, क्योंकि हम कोई प्लेस करते थे, कभी तालीम बालिगान, कभी अभी आपने खुद ही कहा ना सितारों से आगे जहाँ और भी, अब फिर उसके आगे, क्योंकि इनकी आपके साथ ही वो एक नहीं पीआईडी में ही किया था, तो अभी इश्क के इम्तिहान, तो वही उसदा सी मुझे वो रिदम में याद है क्योंकि आपने वो पे पढ़वाया. तो ये सब तो हो गया आपने, लेकिन ये स्कूल शुरू कैसे किया? Okay. क्यों किया? क्योंकि आई थिंक शुरू में स्कूल नहीं था ना, शुरू में कुछ और था. इट वाज जस्ट वो एक पायलट प्रोग्राम था. हम देखना चाह रहे थे कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं. सोच आई कहाँ से, पहले तो नहीं बताया. ओके, दैट इज फ्यू इंसिडेंट्स के ऊपर वो हमारा एक्सपीरियंस था, जिस पे हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. एंड वो बेस था हमारे बड़े बच्चों की स्कूलिंग के ऊपर, कि द एल्डर किड्स हु आर नाउ इन द प्रैक्टिकल लाइफ, उनके हवाले से हमें अक्सर इश्यूज ही रहे स्कूलिंग में, और लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन से बस एक रिफ्ट सी रहती है, डिससेटिस्फैक्शन सी है. हम कोई सजेशन उनको देते थे कि इसको ऐसे कर लें, तो कहते थे नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता, ये तो ओ लेवल्स के लिए तैयारी करानी है, तो ये तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे. और बाय द एज ऑफ जब बच्चे 8वीं में आते हैं तो हमें लग रहा था कि बच्चे की ना मैथ्स अच्छी है, ना इंग्लिश उसको इतनी अच्छी आती है जैसी होनी चाहिए थी, इतने बड़े बड़े स्कूल जहाँ वी पेड थ्रू आवर नोजेस, एंड ना उर्दू ढंग की आ रही है कि 4 लाइनें नहीं पढ़ सकते अखबार के अंदर, तो हो क्या रहा है. तो हमने घर में बच्चों को खुद उर्दू पढ़ाना शुरू किया. आई रिमेंबर माई हस्बैंड हैविंग माई तो जो बड़े वाले बच्चे उनको बिठा के, और साथ में कुछ कज़न्स उनके और मेरी नंदों के बच्चे वगैरह. तो मुख्तार मसूद की किताब थी आवाज़ दोस्त, उसका रीड अलाउड सेशन करते थे. तो जो बच्चों ने उर्दू सीखना शुरू की वो तब उस किताब की रीड अलाउड सेशन से पढ़ना शुरू की. मैंने कहा ये तो काम कर रहा है मामला. एंड दैट वाज समथिंग जस्ट आउट ऑफ परेशानी के, यार बच्चों को उर्दू नहीं आती है, हम अहले ज़ुबान हैं और हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती.
इसी तरह अंग्रेज़ी के लिए किया कि किस तरह अंग्रेज़ी कराई जाए, अंग्रेज़ी की किताबें रखी, फिर वीडियोस, कार्टून, बड़े उस ज़माने में वीसीआर होता था तो हम बैठ के सब इकट्ठे मूवीज़ देखा करते थे, डिज्नी की और दूसरी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बच्चों की इंग्लिश इम्प्रूव होने लगी, तो हमने कहा तो फिर स्कूल क्या कर रहा है, एंड इतनी किताबें और इतनी क्लासेस और हर वक्त गोशमाली हो रही है, आपके बच्चे को ये नहीं आता, आपके बच्चे को वो नहीं आता, और व्हाट्स हैपनिंग। तो फिर हमने छोटे छोटे से क्लब्स स्टार्ट किए घर के अंदर, एंड फॉर्चुनेटली मेरी जो मदर इन लॉ थी, हु वाज आल्सो बाय द वे, शी वाज अ रियल वुमन ऑफ सब्सटेंस, उन्हीं की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने L12 में जो है वो इनकॉर्पोरेट की हैं, लाइक जो हाइड पार्क वाला कॉन्सेप्ट है, उनका ये तरीका होता था कि वो सब बच्चों को गली के, मोहल्ले के, ख़ानदान के बुला के एवरी सैटरडे शी वुड हैव देम sit and just recite anything they wanted to share. कोई नज़म पढ़ रहा है, कोई क़िरत कर रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और कुछ ना कुछ करे ज़रूर, और फिर उसके बाद उनको बहुत अच्छा हाई टी उनको सर्व करती थी वो। एंड दिस हमारी हाई टी का है हमारा वो होता है ना कैंटीन ड्यूटी तो वो होता था घर में, एंड दैट वाज डूइंग वंडर्स फॉर द किड्स। वो मिंगलिंग होती थी सबकी, और हर तरह के बच्चे आते थे, कि हमारा जो धोबी था उसके भी बच्चे आते थे, और बहनों के बच्चे भी होते थे, और ख़ानदान में जो आना चाहे वो आ जाए, और नेबरहुड के बच्चे भी होते थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ वो एक्सपोजर हैपनिंग, और वो बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते थे। तो ये हमें एक चीज़ जहन में आई। फिर माय सिस्टर इन लॉज आर इनटू आर्ट्स, वन ऑफ माय सिस्टर इन लॉ पेंट्स, तो उनसे हमने कहा आप पेंट करें। शी गेव अप द आइडिया वेरी अर्ली ऑन कि नहीं, मैंने तो NCA नहीं गई, वहाँ नहीं गई, तो मैं आर्ट्स छोड़ दूँगी। तो उनको कहा कि आप जिसको जो अच्छा आता है वो बच्चों के साथ करें, एंड बच्चों ने सिर्फ देखा, एंड देन दे स्टार्टेड कॉपीइंग, एंड फ्रॉम देयर वी रियलाइज्ड कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लासरूम सेटअप में बिठा के कराएं उनको, ये सारे वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो इर्द गिर्द हो रहे हैं, एंड चिल्ड्रन आर वॉचिंग। वो कहते हैं ना कि डोंट वरी दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। तो वो आप मॉडल कर रहे हैं ना बच्चों के सामने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बहुत थे तो मेहमान आते थे, तो जिस तरह डॉक्टर साहब के वालिद मेरे ससुर मेहमान आते थे, तो जिनके साथ बच्चे होते थे, बच्चों को बहुत अटेंशन, ड्यू रिस्पेक्ट दे के आइए बैठिए, बात उनसे उसी तरह करते थे जैसे बड़ों से करते थे। तो वो एक एलिमेंट था कि रिस्पेक्ट इज़ समथिंग जो कि स्कूलों में बच्चों को अनफॉर्चुनेटली नहीं दी जाती। तो ऐसा इदारा हो जहाँ उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर तालीमी सफ़र जारी रखा जाए, हर बात पे टोका रोका ना जाए। तो ये सब चीज़ें जहन में थी। फिर कुछ ऐसे हम ख्याल लोग जमा होना शुरू हुए, उनके साथ हमने मिलके छोटे छोटे से इवेंट्स किए, आर्ट्स के, शायरी के। तो उसी ज़माने में मेरा जो बेटा है उसको मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल याद हो गई। बल्कि डॉक्टर साहब भी ये करते थे कि जब लाइट जाती थी, एक ज़माने में कराची में बहुत लाइट जाया करती थी, तो हम लोग जनरेटर या UPS का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम सहन में बैठ जाते थे और हम ये शेर व शायरी पढ़ा करते थे। वो अपनी पसंद की पढ़ते थे, मैं अपनी। इसको हसन भाई को नहीं, 3rd नंबर अफान हाँ। ओके तो उसको वो गज़ल याद थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा यानी निबाह का, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो उसको वो गज़ल याद हो गई। तो एक दिन उसने कहा कि मैं स्कूल में शो एंड टेल में ये पढ़ लूँ। मैंने कहा हाँ हाँ पढ़ो जाओ। तो वो उसने सुनाई वहाँ जाके। तो उसी दिन ना स्कूल से कॉल आ गई मुझे कि आइए ज़रा आपकी मीटिंग है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने हमारी क्लास ले ली। उन्होंने कहा ये आपका बच्चा क्या पढ़ रहा था, बेकार चीज़, गज़ल वज़ल पढ़ रहा था कुछ, ये तो बहुत ही एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये तो बच्चों की नज़में पढ़ा है। मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? कि नहीं ये कोई एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वाहियात चीज़, इसको आशिकी की बात हो रही है। मैंने कहा मगर इसमें आप ये तो देखें, रिदम है, राइमिंग है, बच्चा उर्दू के अल्फाज सीख रहा है, उर्दू के अल्फाज बोल रहा है, तो डोंट यू। उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया उसको। खैर वो बात आई गई हो गई। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ कि वो लाइट जाया करती थी तो हम गद्दे डाल के सहन में लेट जाते थे। तो वो जो आसमान पे तारे हैं तो उनकी फॉर्मेशन पे बात होती थी कि अच्छा ये पैन हैंडल है, ये प्लैनेट होगा। किताबें बहुत थी हमारे यहाँ, तो वो प्लैनेट की किताब और स्टार्स की किताब। तो उसने कहा बेटे ने कि मैं ये किताब ले जाऊँ शो एंड टेल के लिए। हमने कहा ले जाओ।
वो इतनी बड़ी सी किताब थी, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें थी और उसमें वो जो फॉर्मेशंस हैं और जो स्टार्स एंड प्लैनेट के क्लस्टर्स हैं और क्या क्या वो बने हुए थे। वो किताब लेके गया, उसी दिन फिर कॉल आ गई कि आपकी मीटिंग है। हम अब डरे डरे सहमे सहमे गए, तो स्कूल जाते हुए लगता था पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैंने कहा ये आपने फिर भेज दी इनअप्रोप्रिएट चीज़, एज अप्रोप्रिएट नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है भाई, कि ये वो क्लास के बच्चे तो इसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, आपने ये क्यों भेजा। तो मैंने कहा इसमें मुज़ायका क्या है, क्या कबाहत है इसके अंदर, कि नहीं आप कोई बच्चों की वो भेजती ना टॉम वाली किताब, या वो जो है वो पीटर एंड जेन वाली किताब, खुदा का वास्ता अगर ये इन्फॉर्मेशन और सारे बच्चों को भी मिल जाएगी तो क्या बुराई है। हो सकता है कोई इसमें एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई में चला जाए, एस्ट्रोनॉमर बन जाए, कुछ और उसको शौक हो जाए, नहीं 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 ये हम कोर्स के में नहीं डाल सकते और ये बहुत मुश्किल है और ये फलाना। तो अजीब हमें इख्तिलात शुरू हुआ। एंड देन वी रियलाइज्ड कि नहीं ये कुछ सही नहीं हो रहा है। एंड तब फिर हमने रिसर्च की, पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, सवाल पूछने शुरू किए, बेसिकली अपने आप से भी और अपने इर्द गिर्द लोगों से भी और अहले इल्म जो जिनसे हम कनेक्टेड थे उनसे भी, कि ये ऐसा क्यों है कि अगर कोई अपनी एज से बढ़ के कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या उस किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा है जिसके लिए शायद उसकी एज अप्रोप्रिएट ना हो, तो व्हाई इज़ दैट पर्सन बीइंग कंडेम्ड, व्हाई इज़ दैट। तो लोगों को भी एहसास हुआ। फिर इसी ज़माने में हमारा तारुफ सलमान सिद्दीकी साहब से हुआ, ERDC के जो CEO हैं, और वो भी हम मिजाज हम ख्याल निकले। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है गलत, और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ती चली गई। फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया L12 में, संडे फंडे के नाम से, कि वहाँ संडे के संडे हम मुख्तलिफ एरियाज़, जैसे मैथ्स एरिया है तो मैथ्स में पजल्स होते थे, कुछ ब्रेन टीजर्स होते थे वो रखते थे। इसी तरह साइंस के एरिया में कुछ छोटे छोटे इजी एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो बच्चे करते थे। लैंग्वेजेस के लिए यही शेरो शायरी और बोलचाल, और कुछ इस तरह आर्ट्स एरिया होता था जहाँ कैनवसेस हमने लगा के रखे, और बहुत ही मामूली सा हम उसका चार्ज रखते थे कि लोगों को आने में दिक्कत ना हो। तो बहुत लोग आए जिन्होंने कि उसको एंजॉय किया। And then I pulled my kids out from the conventional system and I homeschooled them. और इस ज़माने में फिर मैंने कई और अहले इल्म से मुलाकातें की, दोनों द थर्ड एंड द फोर्थ, बड़े वाले तो बड़े हो चुके थे। तो फिर हमें, लेकिन उस पूरे 2 साल के अरसे में मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि एज अ मदर आई कैन नॉट बी अ टीचर फॉर माई किड्स। They just want to see a mother in me. They don't want to see the teacher side of me. And because I was trying desperately to be their teacher, I was becoming a horrible person. And they were getting afraid of me. कि अब पढ़ाने बैठने वाली हैं और अब इनका गंदा वाला फेस शुरू हो जाएगा, ये गुस्सा करना शुरू कर देंगी। और फिर हम लोग का जो सोशल सेटअप है फैमिलीज़ का, उसमें ये होता है कि आपको कहीं किसी इवेंट में जाना है, अचानक हो गया कहीं पे जाना है, फलाने से मिलने जाना है, या खुदा ना खासा किसी का इंतकाल हो जाता था, तो अब आपका जो उस दिन का एजेंडा है, जो स्केड्यूल है, वो तो डिस्टर्ब हुआ। अब वो जब डिस्टर्ब हुआ तो वो एक इरिटेंट बन जाता था, आज का ये मेरा पूरा नहीं हुआ। आई वॉज फॉलिंग बैक इन टू दैट कंडीशन जहाँ पे करिकुलम डेडलाइंस हैं, जहाँ पे आपको अपना सिलेबस कवर करना है, मुझे इतनी किताब, इतने चैप्टर्स, इतनी एक्सरसाइजेस करानी ही करानी है बच्चों को, एंड दैट वाज अनकंफर्टेबल। एंड द किड्स, तो मेरे सबसे बड़े बेटे ने कहा कि द किड्स आर अफ्रेड ऑफ यू एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी सिचुएशन, आप देखें व्हाट वी आर डूइंग, देयर समथिंग रॉन्ग विद इट। पर हमने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाते जो कि जिनको जो एक्सपर्ट हैं जिस एरिया के, कोई मैथ्स का है, कोई आर्ट्स का है, तो हम उनको गैदर करते हैं। फिर हमने संडे फंडे में ये लोगों को बुलाना शुरू किया, खुद भी करते थे R&D करके, and that's how we started. So basically L12 started as a club where people with different passions and different hobbies would come and display their talents. और बच्चे फिर उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे क्विजेस बना के लाते थे, गेम्स बना के लाते थे, तो उसमें मज़ा आता था। बड़ों की भी इन्वॉल्वमेंट होती थी, बच्चों की भी होती थी।
Then those people who were regularly coming, they said, why don't you start a regular 5-day program? एंड दे सजेस्टेड, तो बहुत लोगों ने कहना शुरू किया कि प्लीज़ शुरू करें, हम भी डिससेटिस्फाइड हैं कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एजुकेशन से, तो ये एक अच्छा हमें अप्रोच लग रहा है. वी वर एक्चुअली अफ्रेड कि पता नहीं काम करे या ना करे, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ ऑड्स अप अगेंस्ट अस. तो फिर हमने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. नॉट ट्राइंग समथिंग आउट इज अ शॉर्ट मिस. एंड वी ट्राइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारे हर्डल्स थे, एंड द ऑड्स वर टू हाई. और लोगों ने हमको कहा पागल हैं, नहीं चलेगा, क्रेजी हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं ये, वो भी घर के अंदर, और वो भी अपने घर को रेनोवेट किया, घर को पूरा वी मूव्ड आउट, वी रेनोवेटेड द होल प्लेस, एंड उसमें हमने ये शुरू किया. तो जाहिर है ज़ीरो से शुरू किया था, पीछे कोई बजट ऐसा नहीं था, जो कुछ था वो उसी घर के अंदर से निकाल के रीयूज़ किया. अपने पास जो कुछ था वो सारी सेविंग्स वगैरह लगाई, फर्नीचर ये वो जो कुछ करके. तो a lot of people kept telling us this is going to fail and you're going to fail miserably, this is not going to work out. अगर आपने 2 साल चला भी लिया तो it has no future in Pakistan, लोग नहीं समझेंगे. And somehow because we were a team, husband and wife, so we kept supporting each other. And this is where when you asked कि ये कैसे collaboration हुआ, तो somehow हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस बारे में बहुत अच्छी थी, बिकॉज आवर किड्स वर इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कुड सी, एंड उसमें मज़ा भी आता था. जिस काम में चैलेंज नहीं होता उस काम में मज़ा नहीं आता ना. तो दिस वाज अ चैलेंज फॉर अस टू प्रूव ऑल दोज पीपल, टू प्रूव इट टू अदर पीपल एज वेल, एंड टू प्रूव इट टू आवरसेल्व्स आल्सो. वी कैन ऐड सम मीनिंग टू लाइफ, के ऐसे तो कंप्लेन करने वाले तो बहुत है ना दुनिया में, ये अच्छा नहीं है, फलां ख़राब है, ये बुरा है. मैंने कहा यार कंप्लेनिंग मोड में नहीं आना ना. देयर आर ऑलवेज अराउंड पीपल अराउंड अस फॉर मोर्निंग एंड क्राइंग. तो लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस, जो समथिंग विच इज़ बॉदरिंग अस. तो उसमें मज़ा आ रहा था, और लोगों के साथ जब बात करते थे लोग खुश होते थे संडे फंडे में आके. और रेगुलर प्रोग्राम में हमें बहुत दिक्कत हुई. वी स्टार्टेड ऑफ विद 13 चिल्ड्रन ओनली. सिर्फ 13 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे मेरे अपने थे. तो 13, that was 2011, दैट वाज 2010. 13 साल हो गए भाई. तो वो 13 बच्चे थे, और जो फर्स्ट टीचर हमने हायर किया था, आई थिंक मेयरली हम कुछ 1000 रुपए उनको दे रहे थे. एंड ऑल डे, और मैं खुद उसमें होती थी. मेरा सबसे छोटा वाला कैरी कॉट में होता था, वो पूरा पैराफर्नेलिया में उसका लेकर आती थी. मुझे तो ये सब याद है, क्योंकि अगेन आपका वो जो बैग होता था एहसान का, हर जगह वो हर उसमें अक्सर दफ़ा मुझे होता था कि खाना भी मैं वहीं पका रही होती थी घर के लिए, कि वो यार अब घर जाके कौन पकाएगा, यहीं हंडिया चढ़ा दो. तो उस वक्त, और फिर जो स्टाफ था, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो आए दिन हड़तालें बहुत होती थी उस ज़माने में कराची में. आए दिन हड़ताल हो गई, बसें बंद हो गई, वो जमादार नहीं आया, वो बुआ नहीं आई. तो मैंने डॉक्टर साहब ने झाड़ू भी लगाई है, बाथरूम्स भी धोए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे तो आएंगे और जगह को साफ भी रखना है. तो ये सब काम भी किए, क्योंकि नीयत जो थी वो एक मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर थी. हम ये चाहते थे कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ बच्चों को प्रेशर महसूस ना हो, मतलब वो आना चाहें वहाँ पर खुद से, शौक़ से सीखने के लिए. और दुआ ये थी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन सके, मीनिंगफुल हो सके ये पूरी जर्नी और एक्सपीरियंस. तो बस फिर हम लगे रहे, और तकलीफ़ें बहुत सारी हुई. रोज़ाना बैठ के सोचते थे क्या पाल लिया हमने, क्यों शुरू कर दिया, इतनी दिक्कत हो रही है. मगर फिर वो अगले दिन जब बच्चे आते थे, या किसी पेरेंट से खुशी के नोट के ऊपर बात होती थी कि वो कितने खुश हैं, वो कितने सुकून में हैं कि उनका बच्चा सुबह उठ के शौक़ से आना चाहता है इस जगह पे. तो दैट वाज रिवॉर्डिंग एंड दैट वाज द मोटिवेशन. एंड देन वी जस्ट कैरिड ऑन. वो पता ही नहीं चला वक्त. अब देखो पीछे मुड़ के तो लगता है गॉड कितनी दूर से हम आए, एंड कितनी दूर चलते रहे. और थकन होती थी, बेजारी होती थी, रोना आता था, दिल दुखता था, टूट जाते थे, बिखर जाते थे बुरी तरह से. फिर कोई हिम्मत बंधाने वाला आ जाता था, अल्लाह मियाँ किसी को भेज देता था. डॉक्टर साजिद जमील जैसे साहब हैं, कुतुब अहमद साहब हैं जो हमारे मोहसिन हैं, रफ़ीक हैं. तो ये लोग साथ में जुड़ते चले गए, जो हिम्मत बंधाते थे कि नहीं इंशाल्लाह
आप लोग लगे रहिए। जब हम टूटने लगते थे वो हमें समेट देते थे। तो ऐसे लोगों से हिम्मत रही, बात करते रहे। और माई मदर हैज़ बीन अ बिगेस्ट मोटिवेटर इन ऑल ऑफ दिस। माई ब्रदर डॉक्टर खुर्रम हुसैन who kept supporting us. My children also, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे जर्नी में. My eldest हसान was, उस ज़माने में वो अकाउंट्स और सारा कुछ देखा करता था. तो बस फिर वो चलते गए एंड पीपल केप्ट एडिंग टू दिस. एंड अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं इनके साथ. एंड somehow मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ ना बरकत देता चला गया in terms of human resource and as well as other resources. के अच्छे लोगों से, नफीस सोच रखने वाले लोगों से मिलवाता चला गया. मुश्किल लोग भी आए और तकलीफदेह लोग भी आए बीच में, और ऐसे लोग भी आए जिनके साथ काम करके लगता था कि एनर्जी सारी ड्रेन आउट हो गई है. लेकिन मुझे उस वक्त तो लगता था ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और ये क्योंकि हम डिफरेंट काम कर रहे हैं ना, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है. बट देन नाउ आई रियलाइज कि अल्लाह मियाँ ने उन लोगों से इसलिए इंटरेक्ट कराया कि हमें पता चल सके कि कितने तरह के लोग दुनिया में होते हैं. जितनी भी दिक्कतें आई, हर्डल्स आए, तो अल्लाह मियाँ वाज प्रिपेयरिंग अस, sort of testing us also कि how passionate we are, how much persistent are we going to be in all this. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब I feel कि we still have a long way to go, by the way. I know. That's one of my next questions. Still have a long way to go. अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि आपके इदारे में शशका नहीं है बिल्कुल, यू नो, बिल्डिंग ऐसी क्यों है. वो लोग तो हम भी कंप्लेन करते थे. हाँ, कि बिल्डिंग ऐसी क्यों है, यहाँ पे ये फर्नीचर ऐसा क्यों है. तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज़ नॉट ईजी ना. एंड देन आप जितने भी बड़े स्टार्टअप्स देख लें, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ गराज, और लोगों ने अपना जो कुछ था घर की ही चीज़ों से स्टार्ट किया. एंड देन ग्रेजुअली दे बिल्ट अप. आप बहुत हाई फाई स्टार्ट करें और अंदर विजडम ना हो, खोखला हो, और आपका दिल उसमें ना हो. इसमें तो हमारा दिल है भाई. मैं तो अक्सर लोगों से ये कहती हूँ कि ये हमारा छठा बच्चा है. तो ये जब इसकी पैदाइश और इसकी स्टार्टिंग और इसके घुटनों चलना, वो सब पेन्स जैसे पेरेंट बर्दाश्त करता है, एंड्योर करता है, उसको पेशेंटली उसके साथ साथ गाइड करता है. तो L2L को हमने इसी तरह देखा है. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं आप जैसे, और जो टीचर्स हमारे साथ हैं जो जा चुके हैं, उनमें से कुछ याद करते हैं इस जगह को, अब भी याद करते हैं. जो अच्छे नोट पे गए वो भी, और जो इतने अच्छे नोट पे नहीं गए वो भी याद करते हैं, कहीं टकर जाते हैं. तो that's very true. And everyone who has graduated, because like even a teacher has graduated from yes. even if I have interacted with them, no one has, because everyone, it was a learning space and a space of freedom. And ये एक चीज़ है जो बहुत कम देखने को मिलती है, वो हर एक अप्रिशिएट भी करता है. एंड बहुत सी चीज़ें आपकी वजह से हुई भी हैं और लोगों ने शुरू करी हैं, और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने शुरू किया बहुत कुछ डिफरेंट किया और स्कूलों से. नाउ यू सी ऑल ओवर पाकिस्तान कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. दे रनिंग ऑन द टिपिकल मॉडल ऑफ डिग्री, और बस पढ़ाना है, डिग्री प्रोवाइड करनी है. अच्छा, कुछ स्कूल्स हैं ऊट पटांग से और हल्के फुल्के जो आपने बताया था मुझे, मगर व्हाट इज लाइक what do you think are a few take backs that initially these other schools, because I know, मतलब हम सलमान साहब से मिलते हैं या बहुत सारे जो what was his name, जो आर से जिनका नाम है राहिद अफजल. तो राहिद अफजल से मिले, सब इन चीज़ों को बताते तो हैं, बट schools are having a difficult time adopting it for some reason. And everyone wants this to happen कि प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा इंटरैक्टिव हों. उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं. What do you think are a few things that schools can start off with to promote critical thinking, to promote freedom that a kid can have with talking to their parents, even with counseling, with getting involved with the school's accounting, with getting involved with
मोर थिंग्स। स्कूल को हमने कलर मतलब बच्चे मिलके करते थे या कुछ आर्ट वर्क करते, तो उस सब में जो इंटरेक्शंस होती थी, जो क्रिएटिविटी होती थी, मतलब वी वुड बी स्टेइंग बैक। मुझे याद है हम रात रात तक रुकते थे हम बच्चे, हम लोग संडेज को स्कूल में होते थे। तुम्हारे पास तो मतलब इवन समटाइम आई वुड थिंकिंग मेरे पास कोई और काम नहीं है स्कूल के अलावा। L12 ही होता रहता था हर वक्त। हाँ. कभी हमारा इवेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी प्लेज हो रहे हैं। संडेज को वहीं होते थे, करीब में बिरयानी खाने जाते थे, नहारी आ रही होती थी, पार्टी चल रही होती पार्टी थी रोज ही रोज की पार्टी। फिर स्कूल के साथ ही हमने के कहाँ कहाँ गए, इस्लामाबाद गए, मुझे अभी तक याद है हम पंचपीर रॉक्स गए I थे know. ट्रक में पीछे बैठ के Some हवा में experience. तो हाइकिंग स्कूल के साथ करी। ऑल ऑफ दिस, हाउ कैन वी empower other schools to start this journey? देखो इसमें व्हाट आई फील कि इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो यहाँ दिल का मामला आ जाता है। दिल का मामला है ये, और फेथ का मामला है। लक़द ख़लक़नल इंसान बिअहसनि तक़वीम, यानी कि अल्लाह ने हर सूरत जो ज़िंदगी इस दुनिया में भेजी है उसको बेहतरीन सूरत में, बेहतरीन कंडीशन में भेजा है। तो बिलीविंग दैट आपको हर इंसान के साथ ये यकीन रखना पड़ता है कि जो इस दुनिया में आया है वो अपना मीनिंग, अपनी कॉलिंग अपने साथ लेके आया है। तो एजुकेशन का जो पर्पस है ना वो उसको उस कॉलिंग को आइडेंटिफाई कराना होना चाहिए, उसको उसकी ज़िंदगी का मकसद ढूंढवाना, ये एजुकेशन का पर्पस है। डिग्री, एकेडमिक्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल पैरेलल हैं इसके, मगर दे आर पार्ट ऑफ द जर्नी, नॉट द जर्नी। ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ पहुँचना है वो तो हम पहुँचेंगे, ठीक है, आप उसको कारमा कह लें, उसको आप हमारी डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बट द असल जो द रियल थिंग इज द जर्नी, हाउ मीनिंगफुल एंड हाउ रिच इट इज़। और वो आती है एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस सबसे पहले तो फेल होना आना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो स्टिग्मा है रिलेटेड टू फेलियर, फेल नहीं होना है। क्यों नहीं होना भाई? फेल होंगे तो सक्सेस समझ में आएगी ना। जिनको हारना नहीं आता उनको जीत का मजा ही नहीं आता पता, जिनको नुकसान उठाना नहीं आता उनको फायदे का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही तो हम लोग पहले ही कहते थे अरे मेरा बच्चा फेल हो गया, बस अब दुनिया खत्म हो गई, मातम कदा खुल गया। तो हो गया फेल, तो अभी इम्तिहान और भी है भाई, आसमान और भी है, कोई बात नहीं, लेट हिम फेल। इसकी पता शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है घर में, जब टॉडलर्स होते हैं ना, उनके हाथ से कोई ग्लास छूट जाए, अरे है तोड़ दिया, होना था ये, एक दिन तो ये तोड़ दो, पूरी अलमारी तोड़ दो मेरी, ठीक है ना। ये हम शुरू हो जाता है घर में। इसको अगर हम रिफ्रेज कर लें, ओहो ग्लास टूट गया, अच्छा टूट गया, तुमने नहीं तोड़ा, टूट गया। ये माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का। हम फौरन जजमेंटल होते हैं, हम फौरन लान तान शुरू कर देते हैं, हम फौरन कोसना शुरू कर देते हैं, हाय मेरी किस्मत, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ही क्यों होना रह गया था, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सोसाइटी में कि ये तो फेल हो गया। और उस फेल के चक्कर में, फेल ना कराने के चक्कर में हम इम्तिहान जीत जाते हैं और बच्चे हार जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भाई आज फेल हुआ है ना, अभी तो बहुत सारे इम्तिहान आ गए हैं, बहुत सारे टेस्ट होंगे, जिंदगी तो खुद एक टेस्ट है यार। तो असल तो टेस्ट हमारा ये है ना कि हम इस जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम किस तरह बातें कर रहे हैं, हम किस तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने रोजगार पे कितना ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। देखो सवाल है, एंड आई थिंक वी शुड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, रेहान साहब भी ये कह रहे थे उस दिन। अगर हमारा जो सिस्टम इतने बरसों से जबरदस्त चकाचक A1 सिस्टम है, जहाँ पे 17 महीने 15 महीने के बच्चे को बल्कि पैदाइश से पहले ही बिफोर इवन द चाइल्ड इज बॉर्न हम नाम लिखवा रहे होते हैं, तो अगर ये इतना ज़बरदस्त है तो हमारे यहाँ फिर सब लोगों को बहुत एथिकेट वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ सब लोगों को बहुत ज़्यादा सिविक सेंस होनी चाहिए। हमारे यहाँ सब लोगों को बहुत पेशेंट होना चाहिए। हमारी रिलेशनशिप्स में इतनी डिवोर्स रेट हाई ना हो, सेपरेशंस ना हो रही हों, हमारे यहाँ बेरोज़गारी ना हो, हमारे यहाँ क्राइम रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए
क्योंकि हम तो सब इतने ज़बरदस्त स्कूलिंग सिस्टम से आ रहे हैं जहाँ बच्चों को 1 साल और उससे पहले से पढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले तक तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ नाम आते थे, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि खाली तालीम रह गई। और तालीम का भी मकसद ये था, मैं बल्कि यहाँ एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे पास एक कपल आया अपने बच्चे के एडमिशन के लिए प्ले ग्रुप में, एंड द किड, पुअर किड वाज अबाउट आई थिंक 3.5, क्योंकि हम उससे पहले कहते हैं कि भाई 2.5 साल का बच्चा तो माँ के साथ होना चाहिए ना, आप 3 साल पे तो लाएं उसको कि वो इस काबिल तो हो कि माँ से अलग हो सके। तो वो आए तो कहेंगे अच्छा देखेंगे जो आपका सिस्टम है ये, आप कहते हैं आप एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे, आप रेजिमेंटेशन नहीं है, आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं निकालेंगे, आप उसको ज़बरदस्ती लिखवाएंगे नहीं, तो ये फिर ओ लेवल्स कैसे करेगा? मैंने कहा कि जब ओ लेवल्स का टाइम आएगा तो ओ लेवल्स कर लेगा। ओ लेवल्स कोई ऐसी ड्रावनी भूत परीत बला तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखें अगर ओ लेवल्स अच्छा नहीं करेगा तो अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, करियर अच्छा नहीं बनेगा तो रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। चलो छुट्टी हुई। अभी तो 3 साल का है। तो मैंने कहा प्यारे लोगों मुझे ये बताओ कि रिश्ते यूनिवर्सिटी की बेस पे कब से होने लगे? मैंने कहा आपने अपनी बेगम का रिश्ता उनका मार्कशीट देख के मांगा था? क्या देखा था जब आपने अपनी बेगम का के लिए रिश्ता मांगा होगा या आपके घर वालों ने मांगा होगा कि ये अच्छे ख़ानदान से है, तहजीब है, बाकी सब बराबर है, कोई और इशू तो नहीं है? ये सब देखा था ना, मार्कशीट तो नहीं देखी थी इंटर की, मैट्रिक की, बीए की, मास्टर्स की, कि क्या कैसे परफॉर्म किया। तो ये तो कहीं पे भी नहीं देखा जाता कि यूनिवर्सिटी। मैंने कहा अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि रिस्क का मामला तो हमारे हाथ में है ही नहीं भैया, रिस्क का मामला तो राज़िक के पास है और हिदायत का मामला हादी के पास है और हिफाजत का मामला हाफिज के पास है, तो हमारे पास क्या बचा? तो इतनी सारी टेंशन लेने से कि 3 साल का बच्चा जो कि अभी स्कूलिंग का एक्सपीरियंस स्टार्ट करने वाला है, उसकी आप इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए परेशान हो रहे हैं। वो फ्यूचर जहां आपको पता भी नहीं कि वो जॉब्स होंगी भी कि नहीं होंगी जब वो वहां पहुंचेगा, हैं? तो आप क्यों अपने पेरेंटिंग को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों उस बच्चे की चाइल्डहुड को बर्बाद कर रहे हैं? रिलैक्स, cuddle your baby 100 times a day, even more. Tell him or her that you love them. Take them to parks. Enjoy करें उस बच्चे को, कि जो कितने बेऔलाद जोड़े इनके बच्चे नहीं है, वो उनको देखें। आपको अल्लाह ने नेमत दी है, रहमत दी है घर में, बेटा हो या बेटी, आप उसको एंजॉय करें। ये मत सोचें कि ये क्या करेगा आगे जाके, जो वो करना है ना वो करेगा। रिलैक्स रहें। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती और ये आज तक एक बहुत बड़ा हर्डल है। एक छोटी सी स्टोरी और सुनाऊं। आई नो दिस लेडी हु इज अ सिंगल पेरेंट, बहुत अच्छी खातून है, बहुत हार्ड वर्किंग खातून है। अब उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे को आफ्टर स्कूल पढ़ाने के लिए, बिकॉज शी वर्क्स सच लॉन्ग आवर्स। और बच्चा जो है वो गालिबन या तो मेड्स के पास रहता है या फिर ऐसी जगह रहता है जहाँ से कोई उससे बात नहीं करता, तो उसकी स्पीच प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है। तो द पुअर लेडी हु इज एक्चुअली अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, जस्ट वो बहुत मुश्किल से काम कर रही हैं इतने लॉन्ग आवर्स में। 6 थेरेपिस्ट्स हैं उनके बच्चे के लिए। कोई स्पीच के ऊपर काम कर रहा है, कोई उसके किसी और चीज़ पे काम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ पे काम कर रहा है, कोई किसी और चीज़ पे काम कर रहा है। और वो हमसे ये जिद कर रही हैं कि उसको आप आगे क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, आप इसकी स्पीच पे क्यों नहीं काम कर रहे, आप उसकी राइटिंग पे क्यों नहीं काम कर रहे, उसके लेटर्स की फॉर्मेशन पे क्यों नहीं काम कर रहे। और असल जो चीज़ है समझने की कि वो जो क्वालिटी टाइम है एक मदर का, एक पेरेंट का अपने बच्चे के साथ, वो मिस आउट हो रहा है ना। तो जब फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी, पेरेंट्स चाहे सिंगल हो चाहे कपल हो, पेरेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी चाइल्ड्स लाइफ। अगर किसी इमारत की फाउंडेशन कमज़ोर होगी तो क्या वो इमारत मजबूत बनेगी? तो फिर इस बात पे तो काम करो ना भाई। स्कूलिंग गई भाड़ में, वो कोई बाल बेगा नहीं कर सकता उस बच्चे का। अगर उस बच्चे की फाउंडेशन कमज़ोर है, दैट इज़ उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, जो कि
3 साल तक कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने आप को अपनी माँ की बॉडी का हिस्सा समझता है। कैसे? कि अक्सर 1.5-2 साल के बच्चे जो हैं, माँ अगर बाथरूम चली जाती है ना थोड़ी देर को, तो वो चिंघाड़ने, चीखने, रोने पीटने लगते हैं। बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर दरवाज़ा पीट रहे होते हैं। ये किसी तरह उनका बस चले और बाथरूम में घुस जाएं। बल्कि जो अकेली माएँ हैं, बाहर जो लोग अकेले रहते हैं, तो वो तो होता ही है कि वो कर्टन खींच के माएँ नहाती हैं और बच्चा वहीं वॉकर में सामने बैठा हुआ होता है, या दरवाज़ा खोल के वो बाथरूम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से आवाज़ें देते रहते हैं, हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ। तो इसलिए बच्चे करते हैं कि वो अपने आप को माँ के जिस्म का हिस्सा समझते हैं। ये कुदरत है, इसको हम लड़ नहीं सकते इसके साथ। अब इस एज के अंदर आप परेशान हो रहे हैं, अल्लाह इसकी शादी कैसे होगी, या इसकी स्कूलिंग का क्या होगा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा। भैया जब ये बड़ा होगा पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ होंगी भी कि नहीं होंगी। सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है, कोर्सेज एक से एक मिले हुए हैं, लोग वहीं से पढ़ के लिख के आगे कहीं पहुंच जाते हैं। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, जिसने ज़िंदगियां अजीरन भी कर दी हैं और आसान भी कर दी हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि पता नहीं स्टैनफोर्ड में या हार्वर्ड में उन्होंने चैट जीपीटी जो स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए टीचर्स के लिए एक ऐप बनाई है जो चेक कर सकें। हाँ, उसके लिए भी एक और ऐप आ गई, पता है? जी। तो इसके लिए एक और ऐप आ गई कि आप चैट जीपीटी से आंसर लिखें और एक और ऐप में डालें, वो उसको ह्यूमन लाइक करेगा और फिर उसमें डालेगा कि फेक चेक ना हो सके। एग्जैक्टली आप देखो, ये तो चल रहा है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है, और आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। भाई सब कर लेंगे, सब कर लेते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे अम्मा बाबा कभी ऐसे परेशान होके स्कूल गए हों। हम फड्डों में भी गए, फड्डे खूब किए मैंने स्कूल में, क्योंकि हमारा को एजुकेशन था और मेरी दोस्ती हमेशा लड़कों के साथ होती थी, तो मैं हमेशा उस ग्रुप में पाई जाती थी जो फड्डे करता था। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए। एकेडमिक का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आई हैव नेवर बीन इनटू द हाई अचीवर्स लिस्ट। और अम्मी अब्बा कभी परेशान होके नहीं जाते थे स्कूल कि ये क्या करेगी, क्या कैसे होगा। और मेरे भाई का जब दाखिला हुआ स्कूल में, तो वो तो मुझे याद है कि वो अक्सर मेरी क्लास में आके बैठ जाता था रोता हुआ, आपा के पास जाना है, आपा के पास जाना है। वो मेरी क्लास में बैठा होता था। तो हम कहीं ना कहीं पहुंच गए यार। तो अम्मी अब्बा ने जो हमें दिया वो था कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चीजें एजुकेशन है। अगर ये हम दे रहे हैं बच्चों को, तो फिर इंशाल्लाह वो हर स्टॉर्म को विथस्टैंड कर लेंगे, दे विल फेस एवरी एडवर्सिटी। लेकिन अगर ये 3 एलिमेंट्स मिसिंग हैं, द 3 C's, जो कि सर सलमान आसिफ सिद्दीकी ने हमें सिखलाई व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ERDC। तो ये मुझे लगा कि वो कोर्स मेरे लिए ही बना था, and it helped me become who I am. A lot of credit should go to ERDC and Salman साहब, कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखलाया और मैंने तो उसको अपने पल्लू में बांधा हुआ है और मैं आज तक इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि हर शादीशुदा, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनको ये कोर्स कर लेना चाहिए टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। कि देखो बच्चे होंगे कल कला, तो हम उनको ये वैल्यूज़ हम देंगे, क्रिएटिविटी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो, कि वो सोसाइटी में जाएं तो अपना exert कर सकें अपने आप को। I think you recommended and even my mom did it. हाँ, lot of parents in L12 went went for this course and I'm sure it must have been helpful for them. मेरे लिए तो आज तक I everything is crystal clear in my mind. Podcast has been a bit long, but I don't want to end it. But I want to end it from a note. I want to ask you, okay, what would be your recommendation to, because everyone who's watching this podcast or will watch, or हमारे सर्कल में किसी ना किसी की कभी शादी होती है या होनी है या हो चुकी है और बच्चे होते हैं या किसी के बच्चे होते हैं, सजेशन देंगे, what would be your 2 suggestions to someone to really help their children with critical thinking? क्योंकि आज के दौर में with ChatGPT, with even when I remember we would be fighting with the teachers about Google and that we don't need this information. I'd be bringing in my laptop when I wouldn't, I mean I know it wasn't allowed, but I'd be using my laptop with typing because I felt like कागज की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह जहाँ पे advancements हो रही हैं, we need critical thinking more than knowledge. Knowledge अब हमारे हाथों में है, तो उसको किस तरह कोई पेरेंट है या किसी बच्चे के लिए किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं? देखिए,
सबसे पहले तो अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या सिबलिंग रिलेशनशिप हो। अनकंडीशनल लव तो मेरे हो जैसे भी हो, अल्लाह मियाँ ने मुझे इस रिश्ते में बांधा है, तो अनकंडीशनल लव उस शख्स की खूबियों और खामियों के साथ। ये खूबियों और खामियों वाला जो जुमला है ना, ये मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि जब आप किसी को अपना लें, ये ख़ास तौर पे मियाँ बीवी को समझाने के लिए कहती थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे को जब इस रिश्ते में बंध जाएं तो उनकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करें। ये आसान नहीं है। सेकेंडली, खामियाँ हर इंसान में होती हैं, उनको नज़रअंदाज करना सीखें और खूबियों पे फोकस करें। दूसरी चीज़ ये रिस्पेक्ट, दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, साथ हैं। रिस्पेक्ट अनकंडीशनल हो, लव अनकंडीशनल हो, तो आपका बॉन्ड, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होता है। एंड यही हमारा दीन भी हमें समझाता है, अदब, एहतराम, मोहब्बत, खुलूस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नाम इनके छोटे छोटे से हैं मगर दे हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, और ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग इज़ द की फॉर पेरेंटिंग। अगर अम्मी अब्बा आपस में एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं या कॉन्ट्रडिक्शंस में हैं, तो बिलीव मी, कोई दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन, महंगा से महंगा स्कूल उस बच्चे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। अम्मी अब्बा का अलाइंड होना, एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंट। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, पता नहीं हमारे अम्मी अब्बा कौन सी अलमारियों में अपनी परेशानियाँ छुपा के रखते थे, कभी हमारे सामने डिस्कस नहीं करते थे। होती होंगी बिल्कुल, ज़माने में भी इन्फ्लेशन का शोर मचता था जैसे आजकल मच रहा है, तो वो कभी जिक्र नहीं करते थे। हमें हमेशा वो एक ही फ्रेम में दोनों नज़र आते थे, चाहे कोई एडवर्सिटी हो रही हो या कोई खुशी का मौका हो, कोई गमी का मौका हो, वो साथ नज़र आते थे। तो बच्चे के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ यही है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी पेशेंस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह चाहिए होता है। बच्चे की अपब्रिंगिंग हो या कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आपका वेंचर हो, प्रोफेशनल, आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट विद अ गुड नीयत, आपकी नीयत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, and that's all what you that and these are all the ingredients you need for a successful venture. That's beautiful, and that's I don't think anyone can disagree with this. And it's been a very emotional podcast because a lot of things, because I've been connected to you for so long, I have heard before, and I'm so happy that I could listen to them again. And your experience, your whole journey is really an inspiration to a lot of people, and I hope that we get to see more Sara Heathers. Oh, I stand humbled in front of you here. Because it's really an honor what you're doing to this country. It's really like, I need to thank you. I can't thank you enough because बहुत important है, and the way you have scaled, I don't think the number of students really matters. Yes, you do have a very large number of students, but those students, when they go out and when they really help others, yes, that's the real impact, and you're really True. helping this country move forward. Thank you for that. Thank you so much, and thank for you having for coming. me here. But the pleasure is all mine, the honor is all mine. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.